سب کو معاف کیا, ہر ایک کو معاف کیا. چلو آج اس خوشی کے موقع پر اکبر الدین اویسی اعلان کرتا ہے کہ اکبر الدین اویسی آج ہر ایک کو معاف کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے معاف کرنے کی نیت کو قبول فرمائے, لیکن آپ کے اس اعلان کو سیاست سمجھا جائے یا شریعت؟ ان کو بھی معاف کرتا ہے جنہوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے. آپ کے راستوں پر کون کانٹے بچھائے صاحب؟ 65 سال سے حیدرآباد اولڈ سٹی میں حکومت آپ کی ہے. اولڈ سٹی کے 70% مسلمان آپ کے قرضدار ہے. ان کا زر زیور زمین جائیداد آپ کے بینکوں میں گروی ہے. مسلمانوں کے 10,000 کروڑ کے اثاثے آپ کے پاس ہے. اگر آپ کی راہ میں کوئی کانٹے بچھاتے تو کانٹے نکالنے میں ہی وقت گزر جاتا. یہ سب آپ کو کہاں سے حاصل ہوتا تھا صاحب؟ ان کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے میری آواز کو دبایا ہے. آخر کون ہے وہ جو آپ کی آواز کو دبائے؟ الحمدللہ جب سے آپ سیاست میں آئے جلسے تقاریر ریگولر چل رہی. با آواز بلند آپ لال دروازے کو ہرا کرنے کا اعلان کرے. کرن کمار ریڈی آپ کے نیوز پیپر کے واسطے 3 ایکڑ زمین, آپ کے واسطے مہاویر ہاسپٹل اور بنڈلا گوڑا میں زمین نہیں دیے تو آپ الحمدللہ با آواز بلند چار مینار کی مسجد کی ٹاٹ پٹری پر زبردست نعرے لگا کے احتجاج کرے. ہر سال مسلمانوں کے 10,000 کروڑ کے اثاثے آپ کے پاس ہے, اعلان کرے. مزے میں کوئی کمپرومائز نہیں. 15 منٹ پولیس کو ہٹا دو اور دیوی دیوتاؤں کے کیسے کیسے نامہ ہے یہ سب با آواز بلند سارے ہندوستان کو سنائے. آپ کے اسرا اور اویسی ہاسپٹل پہ 20 روپے میں 3 مہینے فری علاج کے کارڈ کا با آواز بلند ورلڈ وائڈ چیلنج کرے. آپ اسمبلی میں کانوں کو خوش کرنے والے باتاں اور ابا کے پاس یہ لمبا بمبو اور بمبو رکھنے یہ بڑی زمین, زمین اللہ کی قبضہ عبداللہ کا, یہ سب سنائے. آپ مودی بی جے پی آر ایس ایس آئی ایم دا کنگ میکر, سی ایم میں بناتا ہوں, میں کس کو بھی تخت پہ بٹھا سکتا ہوں, کس کو بھی تختے پہ لٹا سکتا ہوں. یہ سب الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے تکبیر اللہ اکبر آپ ہی با آواز بلند بولتے آئے. آپ کے والد محترم سالار ملت علیہ رحمہ کے دوست احباب, ان کے ساتھیاں, آپ کے چاچا کی عمر کے برابر کے افراد کو آپ علل اعلان با آواز بلند ہمارے بابا کے طہارت کے ڈھیلے بولے تھے, اور ایک صاحب کو آپ چندہ چور بٹے باز کبوتر نواب بولے تھے. آپ کی آواز تو سرے عام گونج رہی, کہاں دبی؟ کون دبائے صاحب آپ کی آواز؟ ان کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے اوپر حملہ کیا, مجھ پر میرا خون بہا ان کی وجہ سے. چلو آج آپ کی موجودگی میں آپ گواہ ہیں, اللہ کے پاس آپ گواہ ہیں, منصور تم گواہ ہو, احمد سعدی تم گواہ ہو. میرے خون کو بہانے والوں کو بھی آج اکبر اویسی معاف کرتا ہے. آپ پر جو حملہ کرے جس کی وجہ سے آپ کا خون بہا, اس پر آپ لوگ ہی بولے تھے کہ چلو اچھا ہوا جو گندا خون تھا وہ نکل گیا. آج آپ جس کو گواہی میں لے کے جسے معاف کرنے کا اعلان کر رہی, یہی لوگوں کو آپ یوم القرآن کے دن مکہ مسجد میں ٹھہر کر یہی لوگوں کو گواہی میں لے کر آپ خود قسم کھا کر اعلان کرے تھے کہ خدا کی قسم تم میں سے ایک ایک کو چن چن کے اپنا انتقام لوں گا. خدا کی قسم تمہیں ایک ایک کو چن چن کے اپنا انتقام لوں گا. اور آپ کی یہی بات پر آپ کے ورکرز نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے, جیسا کہ آپ جہاد میں جا کے زخمی ہو گئے تھے اور دین اسلام کے واسطے انتقام لینے والے ہیں. اللہ کے پاس آپ گواہ ہیں, منصور تم گواہ ہو, احمد سعدی تم گواہ ہو. آج آپ جس کو معافی کی گواہی میں لے رہی, انہی کو آپ زخمی ہوئے وقت وینٹیلیٹر پر جانے سے پہلے ہاتھ پکڑ کر بولے تھے کہ میرا انتقام لینا, اور وینٹیلیٹر ڈالنے سے پہلے منصور سے پلٹ کر کہا منصور مر جاؤں تو میرا انتقام ضرور لینا. یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. رسول
रसूल अल्लाह की तालीम पर अमल करता हूं। रसूलुल्लाह ने माफ किया था हिंदा को भी माफ किया, जिसने कलेजा चबाया था। आज अकबरुद्दीन अवैसी भी माफ करता है। रसूलुल्लाह ने कहा था माफ करता हूं मगर मेरे सामने ना आओ। मैं भी आज माफ करता हूं, बस मेरे सामने ना आओ, मेरे सामने ना आओ। रसूलुल्लाह की कसम, मेरे चाहने वालों की आंखों से टपके एक एक आंसू के हिसाब का बदला मैं जरूर हासिल करूंगा, जरूर हासिल करूंगा। यौमुल कुरान के दिन मस्जिद में ठहर कर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर ऐलान करे थे कि मेरे चाहने वालों के एक एक आंसू का मैं बदला जरूर हासिल करूंगा। उस वक्त ना कोई मुफ्ती आपको रोके, ना कोई उलेमा टोके, ना कोई मसाजिद के मुखर्रिरीन, ना कोई इमाम, ना कोई मशाइखीन पूछे कि आखिर यौमुल कुरान के दिन मस्जिद में ये सब क्या हो रहा। मस्जिद में यौमुल कुरान के दिन जाती झगड़े का बदला लेने, इंतकाम लेने, खुदा की कसम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम आप खुद खाए थे। जो आपका खून बहाए उनको स्पॉट पर गोली मार दी गई, उनके खानदान को जेलों में दम तोड़े तक रखा गया, सब बदले, सब इंतकाम ले लिया गया, चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद आज आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर माफ कर देने का ऐलान कर रही। ये सब क्या खिलवाड़ है साहब? क्या वो लोग जिंदा है जो आपका खून बहाए? क्या उनके खानदान को सजा नहीं दी गई? क्या उन्हें जेलों में मरे दम तक कैद नहीं किया गया? जब तक वो जिंदा थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल याद क्यों नहीं आया? जब तक वो जिंदा थे उन्हें माफ करने का ख्याल क्यों नहीं आया? अब सब खत्म हो गए बात, किस बात पर माफ कर रहे हैं? किसके लिए माफ कर रहे हैं आप? कैसी माफी और माफ करने वाले कौन? बड़ी माजरत के साथ पूछना चाहूंगा कि क्या यौमुल कुरान के दिन जिस वक्त आप खुदा की कसम खाए उस वक्त आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं थी? क्या मस्जिद में ठहर कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर इंतकाम की बात करे वक्त क्या आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त गुलाम नहीं थे? क्या उस वक्त आपको कलेजा निकाल कर चबाने वालों को माफ करने का किस्सा नहीं मालूम था? क्या उस वक्त आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का पता नहीं था? आप खुद आपके जाती मामले को मुसलमानों के सामने दीन इस्लाम से जोड़कर बताए, आपके जाती झगड़े को दीन के लिए जिहाद जैसा बताए, आपकी लड़ाई और आप पर हमले के किस्से सुनाने आप मस्जिद और यौमुल कुरान का इस्तेमाल करें। और आज फिर एक बार आप खुद ही अल्लाह रसूल की खाई हुई कसम से पलट के हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल मुसलमानों को बता रही। एक तरफ मस्जिद में ठहर कर बदला लेने, इंतकाम लेने की अल्लाह रसूल की कसम खाए, सब हो गया, मामला खत्म हो गया, कई लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद आज आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर माफ कर दिया कहकर ऐलान कर रही। बस यही रसूलुल्लाह ने माफ किया था हिंदा को भी माफ किया, जिसने कलेजा चबाया था। आज अकबरुद्दीन अवैसी भी माफ करता है। रसूलुल्लाह ने कहा था माफ करता हूं मगर मेरे सामने ना आओ। मैं भी आज माफ करता हूं, बस मेरे सामने ना आओ। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे कई मुफ्तियां, उलेमा, मशाइखीन सियासी जेब में लिफाफे के अंदर बंद है। इसीलिए मस्जिद के इस्तेमाल, जाती तकारीर, इंतकाम, बदला, अल्लाह रसूल की कसम पर, सियासत के दायरे में शरीयत को लेकर खेलने पर उनका मुंह नहीं खुलता। इसीलिए हमें बोलना पड़ता है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई तो सुनिए, हिंदा के वाक़े की जहां आप मिसाल दिए तो हमें बताना पड़ता है कि वहशी मुशरिकीन के साथ जब हिंदा बिनते उतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करके उनका सीना चीर के
कलेजा निकाल के चबाए थे, तो उस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का में ऐलान किए थे कि ये लोग काबे के गिलाफ में भी लपटे हुए रहेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर खुश होकर कभी मस्जिद में या फिर कभी भी कहीं भी ठहर कर ये ऐलान नहीं किए कि चुन चुन कर बदला लूंगा। किसी का हाथ पकड़कर ये नहीं कहे कि मेरा इंतकाम जरूर लेना। कभी किसी को सियासी तौर पर खुश करने ये नहीं कहे कि मेरे चाहने वालों के एक एक आंसू का बदला लूंगा। और सब होने के बाद कभी ये नहीं कहे कि मैं माफ करने वाला हूं, मैं माफ करता हूं, मैं माफ कर दिया। ये हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाती दुश्मनों से बदला या इंतकाम लेने का कभी ना तो ऐलान किए और ना कानून शरीयत में जो सजा है वो सजा देने का ऐलान किए। वो वहशी मुशरिकीन खुद आए, हिंदा को भी लाए, वो सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर गिड़गिड़ाए, माफी चाहे, अपनी गलती का एहसास किए, एतराफ किए, अपनी गलती माने और ईमान लाए। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह के लिए माफ किया और कहे कि बस मेरे सामने मत आओ, क्योंकि जब भी तुम मेरे सामने आओगे मुझे मेरे चचा की याद आएगी। लेकिन अकबर साहब, आपने तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देकर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं कहकर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला हूं कहकर, यौमुल खुरान के दिन मस्जिद में ठहर कर आप पर हमला करने वालों का साथ देने वालों को खारिजे इस्लाम कह दिए। जालिम है, जानता है, उसके बाद भी उस जालिम का साथ दे, उसको तक़वियत पहुंचाने के लिए, तो वो खारिजे इस्लाम हो जाता है। आज अगर कोई अकबर ओवैसी पे हमला करने वालों का साथ दे रहे हैं तो तुम पहले से ही खारिज हो, अब और खारिज हो रहे हैं। मैं तो पहले से बोलता हूं इनको, अब फिर हो गए। हमारे रसूल अपने चाचा का कलेजा चबाने वाले मुशरिकीन को ईमान में दाखिल होते ही माफ कर दिए, और आप पर हमला करने वालों के साथ रहने वाले मुसलमानों को खारिजे इस्लाम का मस्जिद में ठहर के फतवा दे दिए। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन को माफ करके मुसलमान किए, और आप मुसलमान से बदला लेने की कसम खाकर उन्हें खारिजे इस्लाम कहे। मुआफी का उसूल तो यह होता है कि जिसके साथ जाती झगड़ा हुआ, जिसके साथ नाइत्तेफाकी हुई, उनसे मिलके मसाफा करके माफ कर देना या उनसे माफी मांग लेना। अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से माफी चाहकर गले लग जाना, उसके बाद ही अल्लाह से माफी तलब करना होता है। जिससे झगड़ा हुआ, जिससे नाइत्तेफाकी हुई, जिसकी दिल आजारी हुई, अगर वो माफ नहीं करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी माफ नहीं करेंगे। इस्लाह करने के लिए, माफी मांगने के लिए, माफ करने के लिए उस शख्स का सामने होना भी लाजिम होता है। माफीनामे ऐसे ही लफ्जों में बांध कर हवाओं में उड़ाया नहीं करते। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए हो सके तो उन बच्चों को भी बाहर लाइए जो आप लोग को फोन करके सवाल करने के लिए जेलों में बंद है। उन सब से भी पूछिए कि क्या उन्होंने भी आपको माफ किया है या नहीं। उन सब से भी पूछिए कि क्या उन्होंने आपको माफ किया जिसके घरों पर आपके लोग जाकर हंगामा बर्पा किए, सरे आम उनके अम्मा और बहनों को गालियां दिए। उन सब मुसलमानों से भी पूछिए कि क्या उन्होंने आपको माफ किया जिसे आपके लोग सोशल मीडिया पर रात दिन अम्मा बहन के गालियां गिनते हैं। उन सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से भी पूछिए कि क्या उन्होंने आपको माफ किया जिसे आपके लोग दीन इस्लाम से खारिज करके गद्दार, काफिर, मुनाफिक, मुशरिक के फतवे बांटते फिरते हैं। क्या इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ करेंगे? आप हॉस्पिटल में आंख बंद करके जिसका दीदार किए, जिसके कदमों में बैठकर आपके वालिद मोहतरम आपकी दराजी उम्र की इल्तिजा करते रहे, आज आपके ही लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर उन्हीं औलिया अल्लाह की आल औलाद की माँ बहन को गाली गिन रहे हैं। मुसलमानों को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को एक से नंगी एक गाली गिनते हुए
غدار کافر منافق مشرک کے فتوے بانٹتے پھر رہے ہیں، تو ذرا ان گالی کھا کر خاموش رہنے والوں سے بھی پوچھ لیجئے کہ کیا انہوں نے بھی آپ کو معاف کیا یا نہیں۔ یہ بیان صرف اور صرف حق بیانی پر ہے، آپ سے کوئی مخالفت نہیں۔